So today we are going to do this story, Going Places by A.R. Barton. So what this story deals with is hero worship. Hero worship, which is a natural phenomenon of adolescent stage. When you are a teenager, you always adore some celebrity, some hero, some ideal you follow in your life, है ना? तो ये स्टोरी उसी के बारे में है. दिस इज क्वाइट नेचुरल, दिस इज समथिंग वेरी नेचुरल. It happens with almost every teenager, but what we should be bothered about is guidance and monitoring. This hero worship needs guidance and monitoring. Life is to realize our dreams with our potential, possibility, and limitation. Since when reality hits, it may shatter the dreams. Now, when we read this story, the points that you need to remember, first of all, it's about Sophie. Sophie's ambition and unrealistic dreams. Her dreams are not realistic. See, it's good to have dreams, but at the same time, your dreams should be realistic. Your dreams should be which you are able to achieve, right? She wants to start a boutique, wants to earn money by becoming a manager, an actress, or even a fashion designer. She comes from a very weak socio-economic background. So her friend Janzi simply wants Sophie to be happy. So Janzi is realistic. She can't keep information or secret to herself. So these are just certain points that you need to know. Otherwise, when we read the story, you will be able to understand them better. So let's begin reading the story. Going Places, written by A.R. Barton. A.R. Barton is a modern writer who lives in Zurich and writes in English. In this story, Going Places, Barton explores the theme of adolescent fantasizing and hero worship. So, the story is about adolescent fantasizing, means when teenagers they fantasize things, they do not give way to reality, and hero worship when they are always worshipping some celebrity, always thinking about them and their and want to live their kind of lifestyle. So there are certain expressions which are given here: incongruity, prodigy, shaft, solitary elm, arcade, amber glow, waff, pangs of doubt. So these we'll read and then we'll understand the meaning of them also. When I leave, Sophie said, coming home from school, I'm going to have a boutique. Now you see, the story begins with a dialogue between Sophie and Janzi. These are two friends and they are coming back from school, all right, going towards their home from school. So Sophie says, when I leave, means when I leave school, I'm going to have a boutique. जब मैं school छोड़ूंगी, तो मैं एक boutique होगा मेरा. Janzi, linking arms with her along the street, looked doubtful. Now Janzi, who is holding her hand, दोनों ने अपने हाथ में हाथ डाल के वो दोनों चल रही हैं, वो उसकी तरफ डाउटफुल होकर देखती है. Why? Because she is not sure whether what she was saying it would be turned into reality or not. Takes money, Soph, something like that. Takes money, Soph. Soph, like, just out of love, she calls Sophie Soph. Soph takes money, पैसा लगता है उसमें. I'll find it, Sophie said, staring far down the street. दूर की तरफ देखते हुए सोफी कहती है, I'll find it. मुझे मिल जाएगा पैसा. Take you a long time to save that much. इतना जोड़ने के लिए, इतना सेव करने के लिए बहुत समय लगेगा. Well, I'll be a manager then. ठीक है, फिर मैं मैनेजर बन जाऊंगी. If I can't have a boutique of my own, then I can work in a boutique as a manager. Yes, of course, to begin with, शुरू करने के लिए. Till I have got enough. जब तक मेरे पास enough पैसा ना आ जाए. But anyway, I know just how it's all going to look. लेकिन हाँ, मुझे पता है कि वो सब कैसा लगने वाला है. They won't make you manager straight off, Soph. Soph, वो तुम्हें directly manager नहीं बना देंगे. I'll be like Mary Quant, Sophie said. मैं Mary Quant की तरह बनूंगी. I'll be a natural. They'll see it from the start. उन्हें beginning से ही पता चल जाएगा. I'll have the most amazing shop this city has ever seen. मेरी सबसे बढ़िया शॉप होगी जैसी कि इस सिटी में कभी रही है. Gen Z, knowing they were both earmarked for the biscuit factory, became melancholy. Melancholy means sad. So Gen Z,
who knew that they were both earmarked. Earmarked means, it was decided in a way. वो किसके लिए बनी थी? They were designated. Earmarked means designated. जैसे when an animal is domesticated, so there is a mark on his ear, जो उसके mark the ear, it's a sign of ownership. So it's like they were both earmarked, means they were designated for a particular purpose. हाँ, and they were earmarked for the biscuit factory. वो कुछ और नहीं कर सकती थी सिवाय बिस्किट फैक्ट्री में काम करने के लिए. जेंजी ये बात जानती थी. So that's why she became melancholy. वो दुखी हो गई. She wished Sophie wouldn't say these things. वो चाहती थी कि सोफी इस तरह की बातें ना कहे. When they reached Sophie's street, Jenzi said, जब वो सोफी की गली में पहुंच गई दोनों, तो जेंजी ने उसको कहा, It's only a few months away now, Soph. You really should be sensible. सोफ अब सिर्फ कुछ महीने रह गए हैं, and you should be sensible. They don't pay well for shop work, you know that. Your dad would never allow it. वो शॉप वर्क के लिए बहुत अच्छा पैसा नहीं मिलता है, तुम्हें पता है ये बात, और तुम्हारे डैड इस बात को कभी अलाउ नहीं करेंगे. और एन एक्ट्रेस, तो फिर एक एक्ट्रेस बन जाऊंगी. नाउ देर इज रियल मनी इन दैट, उसमें तो वाकई में बहुत पैसा है. यस, एंड आई कुड मे बी हैव द बुटीक ऑन द साइड, और हो सकता है मैं साइड बाय साइड बुटीक चला लूं. एक्ट्रेसेस डोंट वर्क फुल टाइम, डू दे? क्योंकि एक्ट्रेसेस तो पूरा टाइम काम नहीं करती है ना. तो मैं साइड बाय साइड आई कैन हैव अ बुटीक ऑल्सो. एनीवे, दैट और फैशन डिजाइनर, फिर भी या तो एक्ट्रेस या फिर फैशन डिजाइनर. Something a bit sophisticated. I want to have something a bit sophisticated. What does it mean? That she never found the work that the family was doing, like working in a biscuit factory or somewhere. That was not sophisticated work for her. So she wanted to do something sophisticated, which has a lot of money. And she turned in through the open street door, leaving Gen Z standing in the rain. और फिर वो जो ओपन स्ट्रीट डोर था उसमें घुस गई अंदर, और जैनजी वहीं बारिश में खड़ी थी. इफ एवर आई कम इन टू मनी आई विल बाय अ बुटीक. अगर कभी मेरे पास पैसा आया तो मैं तो एक बुटीक खरीद लूंगी. हाँ, इफ यू एवर कम इन टू मनी, कभी पैसा आया तो. इफ यू एवर कम इन टू मनी, you will buy us a blessed decent house to live in. Thank you very much. अगर कभी तुम्हारे पास पैसा आया तो तुम्हें हमारे लिए एक डिसेंट सा मकान खरीदना पड़ेगा. Thank you very much. Sophie's father was scooping shepherd's pie into his mouth as hard as he could go, his plump face still grimy and sweat marked from the day. So, she entered and suddenly she said कि if ever I come into money, I'll buy a boutique. ये कहते हुए घर में घुसी. Now the father was there who was scooping shepherd's pie into his mouth, जो कि वो एक पाए खा रहा था. उसका फेस जो है, it was plum face with grimy and sweat, पसीने से भरा हुआ, लाल हो रखा था, marked from the day, पूरे दिन की मेहनत के बाद. हाँ, she thinks money grows on trees, don't she, dad? डैड, ये सोचती है कि पैसा पेड़ पे लगता है, said little Derek, hanging on the back of his father's chair. डेरेक उसका छोटा भाई होगा जो कि अपने पापा की चेयर की बैक पे लटका हुआ था. उसने कहा, इवन ही कमेंटेड एंड ही सेड, डैड, शी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्रीज. इसको लगता है पैसा पेड़ पे उगता है. Their mother sighed. Sophie washed her back, stooped over the sink, and wondered at the incongruity of the delicate bow which fastened her apron strings. Now, this is told about the mother. So Sophie washed her back. Whose back? The mother's back. सोफी ने देखा कि उसकी माँ जो है सिंक पर झुकी हुई थी, मतलब उसको बैक दिखाई दी उसकी. And wondered at the incongruity. Incongruity means disharmony of the delicate bow which fastened her apron strings. So the mother, whatever she was doing on the sink, must be washing utensils or what. So she must have worn an apron. और पीछे एप्रन के जो स्ट्रिंग्स थे, जो उसकी दोनों रस्सियां थी, जो स्ट्रिंग्स थे, उसका उसने एक बो बनाया हुआ था. मतलब जैसे गांठ लगाते हैं आप, नॉट बनाते हैं ना, वो बहुत इनकॉन्ग्रुएंट था, मतलब वो प्रॉपरली बना हुआ नहीं था. द इवनिंग हैड ऑलरेडी ब्लैक्ड इन द विंडोज. शाम जो है अब थोड़ी गहरी हो रही थी विंडोज में. एंड द स्मॉल रूम वॉज स्टीमी फ्रॉम द स्टोव. और वहां जो स्टोव जल रहा था, एक ही छोटा सा कमरा था, वो भी पूरा धुएं से भरा हुआ था. And cluttered with the heavy breathing man in his vest
at the table. और बिल्कुल cluttered था वो रूम. वहां पर एक heavy breathing man, जोर से गहरी सांस लेता हुआ इंसान, जो कि जिसने वेस्ट बनियान पहना हुआ था, वो टेबल पर था. And the dirty washing piled up in the corner. और एक गंदे कपड़ों का जो था, डर्टी वॉशिंग, जो गंदे कपड़े थे वो एक कॉर्नर में पाइल अप हो रखे थे, ढेर लगा हुआ था. सोफी फेल्ट अ टाइटनिंग इन हर थ्रोट. सोफी को भी अपने गले में कुछ सफोकेटिंग टाइटनिंग लगा. शी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जियोफ. वो अपने भाई को ढूंढने लगी. जियोफ, अनदर ब्रदर, राइट? He was kneeling on the floor in the next room, tinkering with a part of his motorcycle over some newspaper spread on the carpet. When she looked for her brother Geoff, उसने देखा कि बराबर वाले रूम में वो नील डाउन करके बैठा हुआ था और उसके मोटरसाइकिल के कुछ पार्ट्स थे उनके साथ टिंकरिंग. टिंकरिंग, यू अंडरस्टैंड? ट्राई टू रिपेयर. Tinkering is trying to repair. All right. He was trying to repair some motorcycle part that he had over some newspaper spread on the carpet. उसने एक newspaper spread किया हुआ था, उसके ऊपर कुछ मोटरसाइकिल के parts रखे हुए थे, and he was tinkering with them. He was trying to repair them. He was 3 years out of school. उसको स्कूल से निकले 3 साल हो चुके थे. An apprentice mechanic, वो एक apprentice mechanic था, एक intern था, मतलब कि वो मैकेनिक का काम सीख रहा था. Traveling to his work each day to the far side of the city. रोज वो अपने काम के लिए शहर में दूर जाता था. He was almost grown up now. अब वो लगभग बड़ा हो चुका था. And she suspected areas of his life about which she knew nothing, about which he never spoke. और वो हमेशा सस्पेक्ट करती थी, शक करती थी उसकी लाइफ के उन एरियाज के बारे में जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानती थी और जिसके बारे में वो कभी बात भी नहीं करता था. ही सेड लिटिल एट ऑल एवर. वो बहुत कम बोलता था. वॉलेंटेरिली. वॉलेंटेरिली मीन्स ऑन हिज ओन, डेलिबरेटली. जानबूझकर वो बहुत कम बोलता था. अपने आप से, मतलब अपनी इच्छा से वो बहुत कम बोलता था. Words had to be prized out of him like stones out of the ground. उसके मुंह से शब्द इस तरह से निकालने पड़ते थे जैसे कि आपको जमीन से पत्थर निकालने पड़ते हैं, खोद के निकालने पड़ते हैं ना. सो दिस इज हाउ ही वुड स्पीक अ वर्ड और टू इफ यू इंसिस्ट अ लॉट. बहुत इंसिस्ट करने पे वो कुछ बोलता था. एंड शी वॉज जेलस ऑफ हिज साइलेंस. और वो उसकी चुप्पी से बहुत ईर्ष्या करती थी उसको, मतलब बहुत चिढ़ होती थी उसको. When he wasn't speaking it, when he wasn't speaking, it was as though he was away somewhere. जब वो कुछ बोल नहीं रहा है होता था तो ऐसा लगता था जैसे कि वो कहीं दूर है. Out there in the world, in those places she had never been. ऐसे किसी दुनिया में, ऐसे किसी जगह पर जहां पर वो कभी नहीं गई है. Whether they were only the outlying districts of the city or places beyond in the surrounding country. Who knew? कौन सी जगह है वो कहीं दूर, शहर से दूर कोई जगह है या ऐसी जगह जो कि सराउंडिंग कंट्री के बियॉन्ड है. हु न्यू? किसको पता था? दे अटेन्ड अ स्पेशल फैसिनेशन सिंपली बिकॉज दे वर अननोन टू हर एंड रिमेन्ड आउट ऑफ हर रीच. और वो जो जगह, बिकॉज उसका भाई जो है रोज बहुत दूर जाता था और वो जानना चाहती थी उसके बारे में, उन जगहों के बारे में. और वो जगह उसके लिए एक स्पेशल फैसिनेशन रखती थी, बहुत अट्रैक्ट होती थी वो उनसे. क्यों? सिंपली बिकॉज दे वर अननोन टू हर, क्योंकि वो उनके बारे में जानती नहीं थी. एंड रिमेन्ड आउट ऑफ हर रीच. और वो जगह उसकी आउट ऑफ रीच थे. व्हाई? बिकॉज बीइंग अ स्कूल गर्ल, हर जॉब वॉज जस्ट टू गो टू स्कूल एंड कम होम. वो सिर्फ स्कूल जाती थी और घर आती थी. तो बियॉन्ड दैट शी डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट द वर्ल्ड. And now, when her brother was going out, he had completed school and he was going out to work far end of the city. She wanted him to share his experience. She wanted him to talk to her so that she may also know about those places because she was very fascinated with them. But the brother never used to do that. लेकिन उसका भाई कभी भी ऐसा नहीं करता था. वो बहुत कम बोलता था, बहुत मुश्किल से बोलता था. Only if you insist a lot, only then he would speak. Perhaps there were also people, exotic, interesting people of whom he never spoke. It was possible. And not only places, perhaps शायद कुछ लोग भी थे. मतलब not only places that were fascinating to the girl, but some people also exotic. Exotic, you can say, originating or characterizing of a distant foreign country. Like foreigners, किसी foreign country के.
शायद सिर्फ प्लेसेस ही नहीं, कुछ लोग भी, exotic people means belonging to some foreign country, interesting people of whom he never spoke, जिनके बारे में वो कभी बात नहीं करता था. It was possible, ऐसा हो सकता था. Though he was quiet and didn't make new friends easily. हालांकि वो बहुत चुप रहने वाला था और जल्दी से नए फ्रेंड्स नहीं बनाता था. She longed to know them. वो she desired, longed means desired to know them. वो जानना चाहती थी उनके बारे में. She wished she could be admitted more deeply into her brother's affections. वो उसकी बड़ी इच्छा होती थी कि काश उसका भाई उससे और ज्यादा प्यार करे. And that someday he might take her with him. और किसी दिन वो उसको अपने साथ ले चले. Though their father forbade it. Though their father forbade, did not allow. हाँ, उन्होंने, लेकिन उन्होंने, उसके फादर ने ये कभी अलाउ नहीं किया था. And Geoff had never expressed an opinion. और Geoff ने भी कभी इस तरह का अपना ओपिनियन रखा ही नहीं. She knew he thought her too young. क्योंकि वो जानती थी कि वो ये सोचता है कि ये भी बहुत छोटी है. एंड शी वॉज इम्पेशेंट. छोटी भी है और इम्पेशेंट भी है, उसके अंदर बिल्कुल भी धैर्य नहीं है. शी वॉज कॉन्शियस ऑफ अ वास्ट वर्ल्ड आउट देयर वेटिंग फॉर हर एंड शी न्यू इंस्टिंक्टिवली दैट शी वुड फील एज एट होम देयर एज इन द सिटी विच हैड ऑलवेज बीन हर होम. वो इम्पेशेंट थी, लेकिन वो कॉन्शियस थी. उसको पता था कि बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है जो उसका इंतजार कर रही है. एंड शी वॉज सो इंस्टिंक्टिव अबाउट इट, मीन्स शी वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट वर्ल्ड दैट शी वुड फील एज होम. वो उस बाहर की इस शहर में, उस दुनिया में ऐसा कंफर्टेबली फील करेगी जैसा कि कोई अपने घर में करता है. It expectantly awaited her arrival. That world, that city outside, that world outside expectantly awaited her arrival. वो जो दुनिया थी, वो उसके अराइवल का, वो उसके आने का इंतजार कर रही थी. She saw herself riding there behind Geoff. वो अपने आप को हमेशा देखती थी, मतलब इमेजिन करती थी कि वो जियोफ के पीछे मोटरसाइकिल पर राइड कर रही है. He wore new shining black leathers and she a yellow dress with a kind of cape that flew out behind. वो हमेशा इमेजिन करती थी कि उसका भाई जो है उसने ब्लैक लेदर्स पहने हुए हैं और उसने भी एक येलो ड्रेस पहनी हुई है जिसमें एक केप है, वहाँ काइंड ऑफ जो लहराता हुआ पीछे उड़ रहा है. There was a sound of applause as the world rose to greet them. और उस हमेशा ऐसा ड्रीम देखती थी, ऐसा इमेजिन करती थी कि जब वो और उसका भाई मोटरसाइकिल पे बाहर की दुनिया में जा रहे हैं, तो पूरी दुनिया उनको अपलॉड कर रही है, तालियां बजा रही है, उनका स्वागत कर रही है, उनको ग्रीट कर रही है. He sat frowning at the oily component he cradled in his hands, as though it were a small dumb animal and he was willing it to speak. वो वहां पर लेकिन गुस्से में बैठा हुआ था. Now this is her imagination of his world and she wanted to enter his world. Why? Because he had this opportunity to go out and explore. Her brother had that opportunity. She wanted to be a part of it, but she could not because the brother was also not ready to discuss anything or to share anything with her. So but now look at the reality. Actually ये सब तो उसने imagine किया, अब reality क्या है? He sat frowning. वो वहां पर बैठा है गुस्से में. Frowning at the oily component he cradled in his hand. उसके हाथ पर एक oily component आ गया है और वो उसको देखकर गुस्सा हो रहा है, जैसे कि वो component बेचारा कोई छोटा सा जानवर हो जिसको वो चाहता हो कि ये बोले. I met Danny Cassie, Sophie said. एकदम से सोफी ने कहा, मैं डैनी कैसी से मिली थी. He looked around abruptly. Where? एकदम से उसने उसको देखकर बोला, Where? कहाँ? In the arcade. Funnily enough, I met him in the arcade. So arcade is actually, uh, it's a, what do you call it? It's a place. You can say a kind of garden, not even a garden. जैसे एक शॉपिंग मॉल होता है फॉर एग्जाम्पल, तो सो मेनी विंडोज एंड देर इज अ कॉरिडोर, हाँ, दैट काइंड ऑफ. इन द आर्किड. फनीली इनफ, इट्स नेवर ट्रू, ऐसा नहीं हो सकता. आई डिड टू. मैं मिली थी. यू टोल्ड डैड. डैड को बताया तुमने? शी शूक हर हेड. उसने अपना सिर हिला दिया. चेसेंड at his unawareness that he was always the first to share her secrets. And she shook her head and at the same time chastened means a kind of having a kind of restraining effect. Rebuke बोलते हैं ना, हल्का सा डांटना जिसको बोलते हैं, कि एट हिज अनअवेयरनेस, कि क्या ये नहीं जानता कि ये हमेशा अपने सीक्रेट सबसे पहले उसी से शेयर करती है. उसको थोड़ा सा मतलब बुरा लगा इस बात का कि ही इज आस्किंग, यू टोल्ड डैड, तुमने डैड को बता दिया.
Then he said, I don't believe it. मैं नहीं मानता. There I was looking at the clothes in Royce's window when someone came and stood beside me. मैं तो Royce's window, मतलब Royce must be a boutique, है ना, a shop, shop of clothing and all. So वो कहती है कि मैं तो उसकी विंडो में मैं सिर्फ कपड़ों की तरफ देख रही थी, तभी कोई आया और मेरे बराबर में बैठ गया. And I looked around and who should it be but Danny Casey. और मैंने इधर उधर देखा, जैसी देखा तो वो कौन निकला, वो तो डैनी कैसी था. ऑल राइट, अच्छा. व्हाट डज ही लुक लाइक, कैसा लगता है वो? ओ कम ऑन, यू नो व्हाट ही लुक्स लाइक, तुम्हें पता तो है वो कैसा दिखता है. क्लोज टू, आई मीन पास से, पास से कैसा दिखता है? वेल ही हैज ग्रीन आईज, उसकी ग्रीन आंखें हैं, जेंटल आईज. एंड ही इज नॉट सो टॉल एज यू वुड थिंक, और इतना लंबा भी नहीं है जितना तुम्हें लगता है. शी वंडर्ड इफ शी शुड से अबाउट हिज टीथ बट डिसाइडेड अगेंस्ट इट. उसने पहले सोचा मैं उसके दांतों के बारे में कुछ बोलूं, फिर उसने सोचा नहीं, ऐसा नहीं करती. Their father had washed when he came in, and his face and arms were shiny and pink, and he smelled of soap. अब तभी वहां पर फादर आ गए, वो नहा चुके थे जब वो अंदर आए. उनके जो फेस और आर्म्स थे बड़े शाइनी पिंक थे, एंड यू नो सोप, स्मेल ऑफ सोप वाज आल्सो देयर. He switched on the television, उन्होंने टेलीविजन चलाया, tossed one of little Derek's shoes from his chair onto the sofa and sat down with a grunt. जो लिटिल डेरेक था, छोटा भाई था, उसका शू जो है चेयर पे रखा होगा, वो वहां से उन्होंने हटाया और वहां बैठ गए. सोफी मेट डैनी कैसी, जियोफ सेड. जैसे ही फादर वहां आकर बैठे, यस धीमंत. तो जैसे ही फादर वहां पर आकर बैठे, ही जियोफ सेड, सोफी मेट डैनी कैसी. सोफी डैनी कैसी से मिली थी. सोफी रिगल्ड वेयर शी वॉज सिटिंग एट द टेबल. सोफी एकदम से रिगल हो गई, मतलब रिगल्ड, यू अंडरस्टैंड, जैसे छुटकारा पाना कहते हैं वैसे तो रिगल्ड को. सो वो एकदम से जहां वो टेबल पर बैठी थी. हर फादर टर्न्ड हिज हेड ऑन हिज थिक नेक टू लुक एट हर. अब फादर ने जो है अपनी गर्दन घुमाई उसको देखने के लिए. हिज एक्सप्रेशन वॉज वन ऑफ डिसडेन. डिसडेन मीन्स हेट्रेड, मतलब गुस्सा, गुस्सा नहीं, नफरत जिसको बोलते हैं, है ना, इस तरह का एक्सप्रेशन था. इट्स ट्रू, जियोफ सेड. जियोफ ने कहा ये बिल्कुल सच है. I once knew a man who had known Tom Finney, his father said reverently to the television. But that was a long time ago. मैं भी एक बार एक ऐसे आदमी को जानता था जो कि टॉम फिनी को जानता था. सो टॉम फिनी was a very famous footballer. All right, he was a very famous footballer. So उसके फादर ने भी एकदम से बोला कि हाँ, मैं भी एक बार एक आदमी को जानता था जो टॉम फिनी को जानता था. बट दैट वॉज अ लॉन्ग टाइम एगो, लेकिन ये बहुत पहले की बात है. यू टोल्ड अस, जियोफ सेड. जियोफ ने कहा हाँ, आपने हमें बताया था. कैसी माइट बी दैट गुड समडे. शायद कैसी भी कभी इतना अच्छा बन जाएगा. You know, Danny Casey, who himself was a footballer only. You know this or not? Who is Danny Casey? Hmm? He's an Irish footballer. Okay? He's an Irish footballer. So the brother Geoff must be liking him. वो उसको बहुत पसंद करता था. And the girl wanted the brother to be close to him, close to her. That is why she said, suddenly she said that I met Danny Cassie. उसने जानबूझकर ये झूठ बोला so that she can get the attention of her brother, जिससे कि उसको अपने brother की attention मिल सके. Alright? तो ही सेड कि कैसी माइट बी दैट गुड समडे. कैसी भी किसी दिन इतना अच्छा बन जाएगा. बेटर देन दैट, इवन ही इज द बेस्ट, उससे भी अच्छा बन जाएगा, वो सबसे अच्छा है. इफ ही कीप्स हिज हेड ऑन हिज शोल्डर्स, अगर वो अपना सिर अपने शोल्डर्स पर रखे. इफ दे लुक आफ्टर हिम प्रॉपरली, अगर उसका ध्यान रखा जाए. अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस फॉर यंगस्टर इन द गेम दीज डेज. आजकल इन यंगस्टर्स की लाइफ में बहुत डिस्ट्रैक्शंस है. ही विल बी ऑल राइट, वो ठीक होगा. ही इज द बेस्ट टीम इन द कंट्री. ही इज वेरी यंग येट, लेकिन वो भी बहुत छोटा है. ही इज ओल्डर देन आई एम, मेरे से तो बड़ा ही है. टू यंग रियली फॉर द फर्स्ट टीम, लेकिन फर्स्ट टीम के लिए बहुत छोटा है. यू कांट आर्ग्यू विद दैट सॉर्ट ऑफ एबिलिटी, आप इतना आर्ग्यू नहीं कर सकते. ही इज गोइंग टू बाय अ शॉप, वो एक शॉप खरीदने वाला है. सोफी सेड फ्रॉम द टेबल, टेबल से ही बैठकर उसने कहा. हर फादर ग्रिमेस्ड. where did you where did you hear that? तुमने कहाँ सुनी ये बात? जैसे मतलब because you know she, as if she knows everything. So grimace is actually an ugly twisted expression, जिसे कहते हैं ना मुंह सड़ाकर बोलना, in a kind of very expression of disgust and
अम्यूजमेंट, दैट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन. सो उन्होंने भी बड़ा मुंह बनाकर बोला, अच्छा तुमने कहाँ सुना? ही टोल्ड मी सो, उसने ही मुझे बताया. ही मटर्ड समथिंग इनऑडिबल. ये सुनकर जो फादर था उसने अपने मुंह में ही कुछ इस तरह से बोला जो नहीं सुनाई दे सकता था. एंड ड्रैग्ड हिमसेल्फ राउंड इन हिज चेयर, और अपनी चेयर को खींचा. दिस अनदर ऑफ योर वाइल्ड स्टोरीज, ये एक और तुम्हारी वाइल्ड स्टोरी आ गई है. शी मेट हिम इन द आर्केड, जॉफ सेड, एंड टोल्ड हिम हाउ इट हैड बीन. लेकिन जॉफ ने कहा कि नहीं, वो उसको आर्केड में मिली थी और उसने बताया कि ये मीटिंग कैसी थी. One of these days you are going to talk yourself into a lot of trouble, her father said aggressively. लेकिन उसके फादर ने बड़ा गुस्सा होकर कहा कि एक दिन तुम अपने आप को बहुत मुसीबत में डालने वाली हो. Geoff knows it's true, don't you, Geoff? Geoff को पता है कि ये सच है. Geoff, पता है ना? He don't believe you, though he would like to. वो तुम पे विश्वास नहीं करता है, हालांकि वो करना चाहता है. All right. So from this part of the story, what we come to know that it is in the habit of this girl, Sophie, to make stories. All right. Whatever she imagines something, and then she tries to, she tries to implore it as a reality. वो कुछ इमेजिन करती है और फिर उसको इस तरह से दिखाती है जैसे कि ये सच में हुआ हो उसके साथ. सो she is in habit of making stories, and this is a very common practice with teenagers, this is a very common practice with adolescents, right? So but the father doesn't like this at all. Father doesn't believe her. At the same time, he doesn't even like this. The table lamp cast, now another part of the story. The table lamp cast an amber glow across her brother's bedroom wall and across the larger poster of United's first team squad and the row of colored photographs beneath, three of them of the young Irish prodigy, Cassie. Now, uh, in this another part, we are told, we are given a situation, and that is the situation, that is the atmosphere in the रूम ऑफ हर ब्रदर. ऑलराइट. एक टेबल लैंप जला हुआ था जिसका एक ऑरेंज ग्लो उसके भाई की बेडरूम वॉल पर पड़ रहा था. अक्रॉस, सीधा किस पर पड़ रहा था? एक बड़ा सा पोस्टर जो यूनाइटेड फर्स्ट टीम स्क्वाड, यूनाइटेड स्टेट की जो फर्स्ट टीम स्क्वाड थी, उसमें रो ऑफ कलर्ड फोटोग्राफ्स बीनीथ, जिसके नीचे बहुत सारे कलर्ड फोटोग्राफ लगे हुए थे. थ्री ऑफ देम ऑफ द यंग आयरिश प्रोडिजी, और उनमें से तीन जो थे वो आयरिश प्रोडिजी थे. प्रोडिजी, यू अंडरस्टैंड, अ चाइल्ड हु इज अनयूजुअली गुड एट समथिंग, हाँ, दैट इज प्रोडिजी. सो वो तीन थे, कैसी, और उनमें एक कैसी भी था. प्रॉमिस यू विल टेल नो वन, सोफी सेड. तो सोफी ने कहा, प्रॉमिस करो तुम किसी को नहीं बताओगे. नथिंग टू टेल इज देयर, कुछ बताने वाला है ही नहीं. प्रॉमिस जियोफ, डैड वुड मर्डर मी, डैड मेरा मर्डर कर देंगे. ओनली इफ ही थॉट इट वॉज ट्रू, तभी करेंगे जब उन्हें लगेगा कि ये सच है. प्लीज जियोफ. क्राइस्ट सोफी, यू आर स्टिल एट स्कूल, तुम अभी भी स्कूल में हो. कैसी मस्ट हैव स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल्स, कैसी के पास तो पता नहीं कितनी लड़कियां हैं. नो ही डजंट, नहीं है उसके पास. हाउ कुड यू नो दैट? ही जियर्ड, उसने मतलब स्माइल करके, स्माइल विद डिस्गस्ट करके कहा, कि तुम्हें क्या पता? ही टोल्ड मी, दैट्स हाउ, उसने खुद मुझे बताया. एज इफ एनीवन वुड टेल अ गर्ल समथिंग लाइक दैट, हाँ, जैसे कि कोई किसी लड़की को ऐसी बात बताएगा. यस ही डिड, हाँ, उसने मुझे बताया. ही इजंट लाइक दैट, ही इज क्वाइट, वो ऐसा नहीं है, वो चुप रहने वाला है. नॉट एज क्वाइट एज ऑल दैट, apparently, शायद. It was nothing like that, Geoff. It was me spoke first. पहले मैंने बात की थी उससे. When I saw who it was, I said, जैसे ही मैंने देखा कि वो कौन है, मैंने कहा, excuse me, but aren't you Danny Cassie? क्या आप डैनी कैसी नहीं हैं? And he looked sort of surprised, और उसको बड़ा surprise feel हुआ. And he said, yes, that's right. हाँ, बिल्कुल सही है. And I knew it must be him because he had the accent. और मुझे पता था कि ये वही होगा क्योंकि उसका accent वैसा था, like when they interviewed him on the television, बिल्कुल वैसा एक्सेंट जब उसने टेलीविजन पे इंटरव्यू दिया था. So I asked him for an autograph for little Derek. तो इसलिए मैंने छोटे डेरिक के लिए उससे ऑटोग्राफ मांगा. बट नीदर ऑफ अस हैड एनी पेपर और पेन. लेकिन हम में से किसी के भी पास ना तो पेपर था ना पेन था. सो देन वी जस्ट टॉक्ड अ बिट. तो इसलिए हमने सिर्फ थोड़ी सी बातें की. अबाउट द क्लोथ्स इन रॉयसेस विंडो, पहले तो रॉयसेस विंडो में जो क्लोथ्स थे उनके बारे में.
He seemed lonely, बड़ा अकेला लग रहा था. After all, it's a long way from the west of Ireland. वाकई में वेस्ट ऑफ आयरलैंड से आने में बहुत लंबा रास्ता है ना. And then, just as he was going, जैसे ही वो जा रहा था, he said, if I would care to meet him next week, he would give me an autograph then. और जैसे ही वो जा रहा था तो उसने मुझसे पूछा कि अगर तुम चाहो तो मुझसे नेक्स्ट वीक मिल सकती हो और मैं तब तुम्हें ऑटोग्राफ दूंगा. ऑफ कोर्स आई सेड आई वुड. तुम बिल्कुल, मैंने कहा कि हाँ मैं मिलूंगी. एज इफ ही वुड एवर शो अप. हाँ, जैसे वो जरूर आएगा. यू डू बिलीव मी नाउ, डोंट यू? अब तुम्हें मेरी बात पे विश्वास हो रहा है ना? He dragged his jacket. उसने अपनी जैकेट निकाली, which was shiny and shapeless, leather jacket, हाँ, जो कि बड़ी shiny थी, shapeless थी, from the back of the chair and pushed his arms into it और उनको पहनने लगा. She wished he paid more attention to his appearance. वो विश करने लगी कि काश ये अपनी appearance को और attention दे. Wished he cared more about clothes. काश ये अपने कपड़ों की और care करे. He was tall with a strong dark face. Handsome, she thought. वो लंबा था, स्ट्रॉन्ग था, डार्क फेस था, हैंडसम था. इट्स लाइक द अनलाइकलीस्ट थिंग आई हैव एवर हर्ड, ही सेड. लेकिन उसने कहा ये एक ऐसी चीज है जिसको, जो मैंने कभी सुनी हो, जिस पे मैं विश्वास नहीं कर सकता. अनलाइकलीस्ट, ऐसा कभी नहीं हुआ. On Saturday, they made their weekly pilgrimage to the watch unit to watch United. सैटरडे को उनका वीकली पिलग्रिमेज. पिलग्रिमेज तो वैसे क्या होता है, तीर्थ यात्रा होती है ना, एज इफ लाइक गोइंग टू द टेम्पल, टू सर्टेन टेम्पल. लेकिन उनका ये एक वीकली पिलग्रिमेज था. हर हफ्ते वो जाते थे टू वॉच यूनाइटेड मैच देखने के लिए. सोफी एंड हर फादर एंड लिटिल डेरेक वेंट डाउन नियर द गोल. वो नीचे गोल की तरफ चले गए. जियोफ एज ऑलवेज वेंट विद हिज मेट्स हायर अप. और जियोफ जो था अपने मेट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ ऊपर की तरफ बैठा. यूनाइटेड won 2-0 and Cassie drove in the second goal. A blend of innocence and Irish genius, going round the two big defenders on the edge of the penalty area, with her father screaming for him to pass and beating the hesitant goalkeeper from a dozen yards. Now the match is happening and United जो है वो जीता 2-0 से. कैसी drove in the second goal. कैसी ने second goal लिया. Blend of innocence and Irish genius. हाँ, गोइंग राउंड द टू बिग डिफेंडर्स, जो बड़े डिफेंडर्स थे उनके साथ वो जा रहा था. पेनल्टी के एज एरिया पर था, जहां से उसके फादर चिल्ला रहे थे दैट ही शुड पास. सोफी ग्लोड विद प्राइड. और जब उसने वो गोल लिया तो सोफी बिल्कुल प्राइड से चमक उठी. आफ्टरवर्ड्स जियोफ वॉज एक्सटेटिक. लेकिन उसके बाद जियोफ जो है वो एक्सटेटिक यानी कि ओवरवेल्म्ड हो गया. ओवरवेल्म्ड, यू अंडरस्टैंड, मतलब जिसकी खुशी का कोई ठिकाना ना हो. हाँ, feeling or expression of overwhelming joy, that is ecstatic. I wish he was an Englishman, someone said on the bus. जब वो वापस आ रहे थे तो किसी ने बस में कहा कि काश वो इंग्लिशमैन होता. Ireland will win the World Cup, little Derek told his mother when Sophie brought him home. जब सोफी के साथ घर आ रहा था, लिटिल डेरेक ने अपनी माँ से कहा कि आयरलैंड इस बार वर्ल्ड कप जीतेगा. Her father was gone to the pub to celebrate. उसके फादर भी पब चले गए थे सेलिब्रेट करने के लिए. What's this you have been telling? Gen Z said next week. अब next week Gen Z ने कहा, वो क्या है जो तुम कह रही हो? About what? Your Geoff told her Frank you met Danny Cassie. तुम्हारे जियोफ ने हमारे फ्रैंक को बताया, मतलब फ्रैंक मस्ट बी हर ब्रदर, कि तुम डैनी कैसी से मिली थी. दिस wasn't an inquisition, just Gen Z being nosy. सो ये क्वेश्चन नहीं था, मतलब इंक्विजिशन मींस क्यूरियोसिटी. ये कोई मतलब प्रोलॉन्ग्ड क्वेश्चनिंग नहीं थी. शी वाज बीइंग नोजी. नोजी, यू अंडरस्टैंड, नोजी, यू कैन से शोइंग टू मच क्यूरियोसिटी अबाउट अदर पीपल्स अफेयर. सो दिस इज व्हाट सोफी फील्स, कि ये कुछ बहुत जानना नहीं चाहती है, वो जानबूझ के इस तरह से पूछ रही है मुझसे. बट सोफी वॉज स्टार्टल्ड. लेकिन सोफी जो है वो चौंक गई थी. ओह दैट, अच्छा वो. जेंसी फ्राउन. जेंसी को गुस्सा आया. सेंसिंग शी वॉज कवरिंग. वो ये समझ पा रही थी कि ये कवर करने की कोशिश कर रही है. यस दैट, हाँ वही. वेल यस आई डिड. हाँ मैं मिली थी. यू नेवर डिड, जेंसी एक्सक्लेम्ड. नहीं, तुम कभी नहीं मिली. सोफी ग्लेयर्ड एट द ग्राउंड. सोफी नीचे जमीन पे घूर रही थी. डैम दैट जियोफ. दिस वॉज अ जियोफ्स थिंग, नॉट अ जेंसी थिंग. ये तो जियोफ को बताने वाली बात थी, जेंसी को बताने वाली नहीं थी. इट वॉज मेंट टू बी समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन देम. ये तो एक स्पेशल बात थी जो कि वो सिर्फ उन दोनों के बीच में रहनी चाहिए थी. समथिंग सीक्रेट. इट वॉजेंट अ जेंजी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल. ये जेंजी को बताने वाली बात बिल्कुल भी नहीं थी. टेल गॉकी जेंजी समथिंग लाइक दैट.
and the whole neighborhood would get to know about it. Tell Gwaki Gen Z, something like that. Gwaki means awkward, हाँ, nervously awkward, कि ये इस awkward Gen Z को कुछ भी बता दो और पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा. Damn, that Geoff was nothing sacred. मतलब वो बहुत गुस्सा हो रही है अपने भाई पे कि उसने क्यों बताया. जैनजी को तो पता चलने वाली बात थी नहीं, उसको नहीं पता चलनी चाहिए थी. इट्स अ सीक्रेट मेंट टू बी. ये एक सीक्रेट है, मतलब सीक्रेट रहना चाहिए था. आई कीप अ सीक्रेट सोफ, यू नो दैट. सोफ, मैं इसको सीक्रेट रखूंगी, तुम्हें पता है ये बात. आई वॉजन गोइंग टू टेल एनी वन, मैं किसी को नहीं बताने वाली थी. दे विल बी अ राइट ओल्ड रो इफ माई डैड गेट्स टू हियर अबाउट इट. पूरी एक रो लग जाएगी अगर मेरे फादर को इस बारे में पता चल गया. जैनजी blinked. जैनजी ने कहा, a row? I have had thought he would be chuffed as anything. Old row means quarrel, dispute. All right. There will be an old row. Why is she saying old? Because there has always been a dispute. Whenever father sees that the girl is making up stories, he is always quarreling, he is always scolding her. हमेशा वो डांटते रहते हैं उसको इस बारे में. इसीलिए वो कहती है, there will be a right old row if my dad gets to hear about it. अगर मेरे डैड को पता चल गया इस बारे में, फिर से वही लड़ाई होगी. जैनजी blinked. A row, लड़ाई. I would have thought he would be chuffed as anything. लेकिन मुझे तो ऐसा लगा कि वो जो है मीन्स ही वुड बी शफ्ट. जैसे एक पफिंग साउंड होती है ना, शफ्ट मीनिंग शफ्ट, यू कैन से वेरी प्लीज्ड, वेरी हैप्पी. हाँ, तो मुझे तो लगा वो बहुत खुश हो जाएंगे. शी रियलाइज देन दैट जेंजी डिडंट नो अबाउट द डे बिट, अबाउट द डेट बिट. जियोफ हैडंट टोल्ड अबाउट दैट. तब जेंजी को ये रियलाइज हुआ, सॉरी, तब सोफी को ये रियलाइज हुआ कि जेंजी को डेट के बारे में कुछ नहीं पता है ना. जोफ ने ये नहीं बताया कि कब मिली वो उससे. शी ब्रीथ्ड मोर इजीली, अब उसको अच्छे से सांस आई. सो जोफ हैडंट लेट हर डाउन आफ्टर ऑल. तो इसका मतलब जोफ ने उसको नीचा नहीं दिखाया. ही बिलीव्ड इन हर आफ्टर ऑल, इसका मतलब उसने उसमें विश्वास दिखाया. आफ्टर ऑल सम थिंग्स माइट बी सेक्रेड, इसका मतलब कुछ चीजें उनके बीच में बड़ी सेक्रेड हैं, पवित्र हैं. It was just a little thing, really. I asked him for an autograph, but we hadn't any paper or pen, so it was no good. अरे बहुत छोटी सी चीज थी, मैंने उससे ऑटोग्राफ मांगा लेकिन हमारे पास पेपर पेन था नहीं, तो कोई फायदा ही नहीं हुआ. हाउ मच हैड जॉफ सेड? जॉफ ने क्या बताया? जीसस, आई विश आई वुड हैव बीन देयर, काश मैं भी वहां पर होती. ऑफ कोर्स माय डैड डिडंट वांट टू बिलीव इट. मेरे फादर भी इसको मानना नहीं चाहते थे. यू नो व्हाट अ मिजरी ही इज, तुम्हें पता ही है वो कैसे हैं. बट द लास्ट थिंग आई नीड इज क्यूज ऑफ पीपल राउंड आवर हाउस आस्किंग हिम व्हाट्स ऑल दिस अबाउट डैनी कैसी. लेकिन ये लास्ट चीज होगी, मैं चाहूंगी कि लोग हमारे घर के आगे लाइन लगाकर ये मुझसे पूछते रहें कि क्या था वो डैनी कैसी के बारे में. ही वुड मर्डर मी, वो मुझे मर्डर कर देंगे. एंड यू नो हाउ माई मम गेट्स व्हेन देयर इज अ रो. और तुम्हें पता ही है कि मेरी माँ कैसी हो जाती है जब लड़ाई होती है. जेंजी सेड हश्ड. जेंजी ने कहा चुप होकर. यू कैन ट्रस्ट मी सोफ, यू नो दैट, तुम मेरे ऊपर विश्वास कर सकती हो, मतलब आई वुड नॉट टेल एनीबडी. After dark, she walked by the canal along a sheltered path lighted only by the glare of the lamps from the wharf across the water, and the unceasing drone of the city was muffled and distant. So, up now, this another part of the story, we find that she walked by the canal. वो canal के बराबर में walk कर रही है along a sheltered path. एक sheltered covered path है जो बना हुआ है, lighted only by the glare of lamps. उसमें सिर्फ वहां पर किस तरह की लाइट है? जो कि लैम्प्स वहां पर लगे हुए हैं. फ्रॉम द वाफ. वाफ इज अ प्लेटफॉर्म मेड अप ऑफ स्टोन और वुड एट द साइड ऑफ द रिवर. ठीक है, एक रिवर के बराबर में एक प्लेटफॉर्म बनाया होता है जहां पर कि शिप्स और बोट्स उनको बांधा जा सके. तो वहां वाफ पर लैंप्स लगे हुए हैं, वही लैंप की लाइट जो है उस पाथ पर दिख सकती है. And unceasing, unstoppable drone of the city was muffled and distant. Drone, you understand? Drone of the city. You know, drone is also kind of insect making continuous low humming sound. ठीक है, तो वो साउंड वहां पर अनसीजिंग अनस्टॉपेबल ड्रोन ऑफ द सिटी वॉज मफल्ड एंड डिस्टेंट. वो बिल्कुल मफल्ड था. मफल्ड मीन्स कवर्ड फॉर वार्मथ, एंड डिस्टेंट और दूर था.
It was a place she had often played in when she was a child. ये ऐसी जगह थी जहां पर वो अक्सर खेला करती थी जब वो बच्ची थी. There was a wooden bench beneath a solitary elm where lovers sometimes came. वहां पर एक wooden bench भी था जहां पर अक्सर lovers आया करते थे. She sat down to wait. वो वहां बैठकर वेट करने लगी. It was the perfect place. ये बिल्कुल सही जगह थी. She had always thought so. उसने हमेशा ऐसे सोचा था for a meeting of this kind. इस तरह की मीटिंग के लिए ये perfect place है. For those who wish not to be observed, she knew he would approve. उन लोगों के लिए जो ऑब्जर्व नहीं होना चाहते, मतलब जो ये चाहते हैं कि कोई उन्हें देखे ना, शी न्यू ही वुड अप्रूव. उसको पता था कि वो इस जगह को अप्रूव कर देगा. फॉर सम वाइल वेटिंग शी इमेजिन्ड हिज कमिंग. थोड़ी देर वेट करने के बाद उसने इमेजिन किया जैसे कि वो वहां पर आ रहा है. शी वॉच्ड अलोंग द कैनाल. उसने कैनाल के साथ साथ देखा. सीइंग हिम कम आउट ऑफ द शैडोज. उसने देखा कि किस तरह से वो शैडोज से निकल कर आ रहा था. इमेजिनिंग हर ओन कॉन्सिक्वेंट एक्साइटमेंट. और खुद ही उसको किस तरह की एक्साइटमेंट होगी, मतलब एज अ रिजल्ट उसको क्या एक्साइटमेंट होगी जब वो उसको सामने से आते हुए देखेगी. तो वो खुद ही उसको इमेजिन कर रही थी. Not until some time had elapsed did she begin balancing against this the idea of his not coming. Not until some time, sorry, not until some time had elapsed. Elapsed means past. Did she begin balancing? अभी जब तक कि कुछ समय पास नहीं हो गया तो वो बैलेंस करने लगी इस आइडिया को कि वो आ रहा है, उस आइडिया के अगेंस्ट कि वो नहीं आ रहा है. ऑलराइट. Here I sit, she said to herself. उसने अपने आप से कहा, मैं यहाँ बैठी हूँ. Wishing Danny would come. ये विश करते हुए, ये इच्छा रखते हुए कि डैनी आएगा. Wishing he would come and sensing the time passing. ये विश करते हुए कि वो आएगा और देखेगा कि टाइम कैसे पास हो रहा है. I feel the pangs of doubt stirring inside me. I feel the pangs of doubt. Pangs of doubt मतलब जो मेरे को शक हो रहा है, stirring inside me. Pangs of doubt, you can say sudden realization of uncertainty. Pangs of doubt is sudden realization of uncertainty कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा. हाँ, मुझे वो pangs of doubt feel हो रहे हैं मेरे अंदर उठते हुए. I watch for him, but still there is no sign of him. मैं यहाँ उसको देख रही हूँ, ढूंढ रही हूँ, but there is no sign of him. लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं है. I remember Geoff saying he would never come. मुझे याद है जियोफ ने कहा था कि वो कभी नहीं आएगा. And how none of them believed me when I told them. और किस तरह से किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया था जब मैंने उन्हें बताया. I wonder what will I do? What can I tell them if he doesn't come? मुझे ताज्जुब है कि मैं क्या करूंगी, मैं क्या कहूंगी उनको अगर वो नहीं आया. But we know how it was. लेकिन हमें पता है कि ये क्या था. Danny and me. That's the main thing. हाउ कैन यू हेल्प व्हाट पीपल चूज टू बिलीव. तुम कैसे मदद कर सकते हो किसी की, जो लोगों को मानना है वो तो वही मानेंगे. बट ऑल द सेम इट मेक्स मी डिस्पोंडेंट. डिस्पोंडेंट मीन्स डिसअपॉइंटेड. लेकिन इस सब से मैं मुझे निराशा हो जाती है. दिस नोइंग आई विल नेवर बी एबल टू शो देम दे आर रॉन्ग टू डाउट मी. ये जानकर कि मैं कभी भी उनको ये नहीं दिखा पाऊंगी कि मेरे ऊपर शक करके वो गलत कर रहे थे. शी वेटेड. वो इंतजार करती रही. मेजरिंग इन दिस वे द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन हर. और इस तरह से उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे थे वो उन चेंजेस को भी मेजर कर रही थी. रेजिग्नेशन वॉज नो सडन थिंग. क्योंकि जो रेजिग्नेशन होता है, व्हेन यू रिजाइन टू अ सिचुएशन, व्हेन यू बिलीव दैट दिस इज नेवर गोइंग टू हैपन, यू नो दैट इज नॉट अ सडन थिंग. वो एकदम से नहीं आता. यू रिजाइन टू योर फेट, यू रिजाइन टू योर सिचुएशन. इट्स अ स्लो प्रोसेस. ये एक स्लो प्रोसेस है. बिकॉज इट इज रियली डिफिकल्ट टू बिलीव that what something that you wanted so desperately will never happen with you. वो कभी नहीं होगा. It's a slow process. It's not a sudden thing. Now I have become sad, she thought. उसने सोचा अब मैं दुखी हो गई हूँ. And it is a hard burden to carry. ये एक बहुत मुश्किल बोझ है. This sadness, you know, this sadness is really a difficult burden to carry. Sitting here waiting and knowing he will not come, I can see the future. यहाँ पर बैठकर इंतजार करके और ये जानकर कि वो नहीं आएगा, मैं अपना फ्यूचर देख सकती हूँ. एंड हाउ आई विल हैव टू लिव विद दिस बर्डन. और किस तरह से मुझे इस दुख के साथ, इस दुख के बोझ के साथ जीना पड़ेगा. दे ऑफ कोर्स विल डाउट मी. बिल्कुल वो मेरे ऊपर शक करेंगे, एज दे ऑलवेज डाउटेड मी, जैसे हमेशा करते थे. बट आई विल हैव टू होल्ड अप माई हेड रिमेम्बरिंग हाउ इट वॉज. लेकिन मुझे अपने सिर को होल्ड करके रखना पड़ेगा. मीन्स आई विल हैव टू होल्ड अप माई प्राइड.
रिमेम्बरिंग हाउ इट वॉज, ये याद करके कि वो कैसा था. Already I envisage the slow walk home. I can already envisage means see through eyes of imagination. मैं अभी देख सकती हूँ अपने आप को कि किस तरह से मैं धीरे धीरे घर की तरफ जाऊंगी. And Geoff's disappointed face, Geoff का कैसा लटका हुआ फेस होगा when I tell him he didn't come that Denny, जब मैं उसको बताऊंगी कि वो आया ही नहीं. And then he'll fly out and slam the door, किस तरह से वो गुस्से में उठकर चला जाएगा दरवाजा पटक कर. But we know how it was. I shall tell myself, Danny and me. लेकिन हमें पता है ये कैसा था. मैं अपने आप को बताऊंगी, Danny and me जब हम मिले थे. It is a hard thing, this sadness. ये दुख बहुत difficult है. She climbed the crumbling steps to the street. अब वो उन crumbling steps street पर चलने लगी. Outside the pub, she passed her father's bicycle propped against the wall. जब वो पब से होकर गुजरी तो उसने देखा उसके फादर की बाइसिकल जो है वो दीवार के साथ खड़ी हुई थी. एंड वॉज ग्लैड, और वो बड़ी खुश थी कि जब वो घर पहुंचेगी तो उसके फादर नहीं होंगे बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी देयर इन द पब. ही वोंट बी देयर व्हेन शी गॉट होम. उसको खुशी थी इस बात की. एक्सक्यूज मी, बट आंट यू डैनी कैसी? कमिंग थ्रू द आर्केड शी पिक्चर्ड हिम अगेन आउटसाइड रॉयसेस. अब जब वो आर्केड के थ्रू आ रही थी, वापस रॉयस के बाहर जब थी, अचानक से उसको फिर से वो दिखाई दिया और उसने पूछा, आंट यू डैनी कैसी? ही टर्न्स रेडनिंग स्लाइटली, थोड़ा सा लाल होकर, मतलब शर्म से. यस दैट्स राइट. आई वॉच यू एवरी वीक विद माई डैड एंड माई ब्रदर्स. मैं हर हफ्ते तुम्हें देखती हूँ अपने डैड और भाइयों के साथ. वी थिंक यू आर ग्रेट. ओह वेल नाउ, दैट्स वेरी नाइस. बहुत अच्छी बात है. आई वंडर, वुड यू माइंड साइनिंग एन ऑटोग्राफ? वुड यू माइंड साइनिंग एन ऑटोग्राफ? वो उसको ऑटोग्राफ के लिए पूछती है. His eyes are on the same level as your own. उसकी आंखें भी उसी लेवल पे हैं जिसकी तुम्हारी हैं. His nose is freckled and turns upward slightly. And when he smiles, he does so shyly, exposing his teeth with gaps between. You know, her close observation about him. His eyes are green, and when he looks straight at you, they seem to shimmer. उसकी आंखें हरी हैं और जब वो बिल्कुल आपके देख रहा होता है तो ऐसा लगता है जैसे चमक रही हैं. They seem gentle, almost afraid, like a gazelle's. Gazelle is, I'll have to check, wait. Gazelle is an animal, all right? So, like a gazelle. And you look away. और फिर आप दूसरी तरफ देखते हो. You let his eyes run over you a little. And then you come back to find them slightly breathless. और फिर से तुम उसकी तरफ देखते हो. And he says, I don't seem to have a pen at all. लेकिन मेरे पास तो पेन ही नहीं है. You realize you haven't either. और फिर तुम realize करते हो कि तुम्हारे पास भी नहीं है. My brothers will be very sorry, you say. और फिर तुम कहते हो कि मेरे ब्रदर्स जो हैं बहुत दुखी होंगे. And afterwards you wait there alone in the arcade. और फिर तुम वहां वेट करते हो अकेले आर्केड में for a long while, standing where he stood, वहीं खड़े होकर जहां वो खड़ा था. Remembering the soft melodious voice, उसकी वो soft प्यारी सी आवाज को remember करते हुए. The shimmer of green eyes. No taller than you, तुमसे लंबा भी नहीं था. No bolder than you, the prodigy, वो तो prodigy है. The innocent genius, the great dim Cassie. And she saw it all again last Saturday. और ये उसने फिर से देखा last Saturday. Saw him ghost past the lumbering defenders. फिर से last Saturday उसने देखा कि किस तरह से वो lumbering defenders के पीछे भूतों की तरह पड़ा था. Heard the 50,000 catch their breath as he hovered momentarily over the ball. किस तरह से 50,000 लोग जो है अपनी सांस रोक कर बैठे हुए थे जब वो उछल कर उस मोमेंट पे बॉल के ऊपर उछला. And then the explosion of sound as he struck it crisply into the goal. और फिर किस तरह से वो आवाज का धमाका हुआ जब उसने क्रिस्प एक गोल लगाया. The sudden thunderous eruption of exultant approbation. वो sudden thunderous like a thunder eruption, जैसे कि कोई ज्वालामुखी फूटता है, of exultant means extremely happy, triumphantly happy. Approbation is approval or praise. All right. So she imagined it again, and again she went to see that match, to watch the match on last Saturday. I hope it is clear, all of you, and you must have enjoyed the story.